So dear students, today our topic is the eye of genome image viewer. The eye of genome, also known as image viewer, is used to view images and pictures file. It opens automatically when we double click on any image file in the Notice File browser. By the way, it is not displayed in the application menu by default but may be made to appear in the menu if we wish. Figure 8.17 depicts a picture open in the image editor. So the genome की आई उसे हम क्या कहते हैं? इमेज व्यूअर, उसके नाम से भी वो जानी जाती है। तो उसका यूज़ इमेजेस और पिक्चर्स फाइलों को व्यू करने के लिए होता है। और जब हम नोटिस फाइल ब्राउज़र के किसी भी इमेज फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको फिगर 8.17 में इमेज एडिटर में पिक्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, सी दिस इज द फिगर 8.17, द आई ऑफ जीनोम इमेज एडिटर. The software provides all the common operations in the toolbar itself. If you have opened an image from a folder that contains other images as well, you may use the previous and next tool to view a previous and next images in the folder respectively. The zoom in and zoom out tool can be used to enlarge and shrink the display of that image, not the original image itself, respectively. The rotate left and rotate right tools rotate the image counterclockwise and clockwise respectively by 90 degree. This is especially useful for viewing photographs taken using a digital camera or mobile phone, where we tend to take photographs in portrait mode and landscape mode depending on the scene means object. Again, the change is made to a copy of the image in main memory and it only temporary, but we get to save the change image for permanent storage on the disk using the file and save menu option. If we modify some image and then try to close the image viewer without saving them, then the software asks us whether we would like to save the changes. Figure 8.18 shows an image in its original form, and after each step when we operations rotate left, rotate right and rotate right are applied in that sequence. Okay, so सॉफ्टवेयर अपने आप टूलबार में सभी जो सामान्य ऑपरेशंस है, बेसिक ऑपरेशंस है, वो आपको प्रोवाइड करता है. और अगर आपने फोल्डर में इमेज जिसमें बहुत सारी दूसरी इमेजेस भी होती है तो उसे ओपन किया है तो आप फोल्डर में क्रमशः पहली और उससे अगली इमेज को व्यू प्रीवियस और नेक्स्ट टूल का यूज़ करके कर सकते हो. जूम इन और जूम आउट टूल का यूज़ हम इमेज को डिस्प्ले करने के लिए और उसे एनलार्ज या फिर श्रिंक करने के लिए हम उसे करते हैं. रोटेट लेफ्ट एंड रोटेट राइट टूल इमेज को काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मीन्स 90 डिग्री पर मूव करते हैं. और डिजिटल कैमरा और मोबाइल फ़ोन से लिए गए पिक्चरों को देखने के लिए भी ये हमें उपयोगी होते हैं. सीन ऑब्जेक्ट के अनुसार फोटोग्राफ्स पोर्ट्रेट मोड या फिर लैंडस्केप मोड में लिए जाते हैं और अस्थायी रूप में मेन मेमोरी में इमेज की कॉपी में फिर से परिवर्तन उसे किया जाता है. परंतु हम परिवर्तित इमेज को स्थायी रूप से डिस्क पर फाइल मेनू के अंदर कौन सा मेनू, सेव मेनू ऑप्शन का यूज़ करके उसे सेव करते हैं. और यदि कुछ इमेजों को मॉडिफाई किए बिना उन्हें सेव करने के लिए इमेज व्यूअर को बंद करने का हम ट्राई करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमसे उन्हें सेव करने या फिर उसे चेंज करने के लिए आपको पूछता है. और यहाँ पर फिगर दी गई है 8.18 इमेज को उसके असली स्वरूप में और उसके बाद ये यहाँ पर ए जो ऑप्शन है वो इमेज का असली स्वरूप है, ओरिजिनल है. देन इमेज को रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट एंड रोटेट राइट. ओके, तो ये सीक्वेंस वाइज यहाँ पर अप्लाई किया गया है. देयर इज़ ऑल्सो अ टूल एडिट दैट ओपन्स द इमेज इन एन इमेज एडिटर प्रोग्राम. Fsport by default, however we shall not discuss it here because we are going to cover the more powerful and better known GIMP image editor
in a later section. Also, this tool is not visible by default in later version of Ubuntu. Some of the more commonly used functionality provided in the menu and not covered by the default toolbar are as mentioned in table 8.1. तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है, उसमें दो पार्ट्स है. उसमें सबसे फर्स्ट है फंक्शनलिटी एंड सेकेंड है डिस्क्रिप्शन. ओके तो उसमें सबसे फर्स्ट है फाइल मीन्स ये मेनू है. फाइल मेनू में जो प्रिंट मेनू इसके बारे में कि ये मेनू का हम यूज़ किस लिए करते हैं, टू प्रिंट द इमेज को प्रिंट करने के लिए. नेक्स्ट इज व्यू मेनू, उसमें इमेज कलेक्शन. इनेबल्स द डिस्प्ले ऑफ अ स्क्रोलेबल बार ऑफ थंबनेल्स. थंबनेल मीन्स स्मॉल प्रीव्यू इमेजेस मीन्स छोटी जो प्रीवियस इमेज होती है उसे थंबनेल कहा जाता है. सो इनेबल्स द डिस्प्ले ऑफ अ स्क्रोलेबल बार ऑफ थंबनेल of the image in the current folder. We may click on a thumbnail to see its full view. See figure 8.19. तो करंट फोल्डर में इमेजेस को थंबनेल के स्क्रोलेबल बार का डिस्प्ले संभव बनाना और हम उसका पूरा व्यू देखने के लिए थंबनेल पर क्लिक करते हैं. यहाँ पर आपको फिगर 8.19 में आपको वो दिखाया गया है. सी दिस इज़ द फिगर 8.19 इमेज कलेक्शन इन इमेज एडिटर. तो इमेज एडिटर में इमेज का जो कलेक्शन है, संग्रह है, वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है. नेक्स्ट इज व्यू मेनू में स्लाइड शो. स्टार्ट शोइंग इमेज इन द करंट फोल्डर वन बाय वन, चेंजिंग इमेजेस एट अ फिक्स इंटरवल. उसकी शॉर्टकट की है F5. तो एक बार और एक के बाद एक करंट फोल्डर में इमेज आपको ये शो करता है और फिक्स इंटरवल पर इमेज चेंज करता है. नेक्स्ट इज एडिट मेनू में अंडू मेनू. टू अंडू द चेंजेस मेड बाय अस वन बाय वन. तो हमारे द्वारा किए गए चेंजेस को क्या करता है, अंडू करता है. नेक्स्ट इज एडिट मेनू में है मूव टू ट्रैश. डिलीट द इमेज एंड मूव इट टू ट्रैश. वेरी यूजफुल व्हेन यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस एंड यू वांट टू डिसाइड विच वंस आर टू बी डिलीटेड आफ्टर लुकिंग एट देम. तो इमेज को डिस्प्ले करके क्या करता है, ये ट्रैश में सेंड करता है. और जब आपके पास बहुत सारी इमेजेस हो तो किसको डिलीट करना है, तो ये तय करने में ये मेनू बहुत हमें यूज़फुल होता है. नेक्स्ट इज एडिट मेनू में है टूल बार. डिस्प्ले सेवरल टूल्स. वी मे ऐड और रिमूव टूल्स टू द टूल बार बाय ड्रैग एंड ड्रॉप. तो कुछ साधनों को डिस्प्ले करता है और हम टूल बार में ड्रैग या फिर ड्रॉप से साधनों को जोड़ या फिर उसे घटा सकते हैं. नेक्स्ट इज एडिट मेनू में ही है प्रेफरेंसेस. अलाउज अस टू मॉडिफाई सम ऑप्शंस. तो कुछ ऑप्शंस होते हैं उसे मॉडिफाई करने के लिए हमें यह अलाउ करता है. नेक्स्ट इज इमेज मेनू में है फ्लिप हॉरिजॉन्टल. रिप्लेसेस द टू हेल्प्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय एन इमेजिनरी vertical line passing through the center of the image to their mirror image as seen in an imaginary mirror at the said line. See figure 8.20. तो इमेज के मध्य से जो सेंटर से पसार होती इमेजिनरी लाइन मीन्स काल्पनिक जो रेखा है उससे बनी इमेज के दो आधे भागों में बताई गई रेखा के काल्पनिक मिरर में दिखते मिरर इमेजों को रिप्लेस करता है. तो ये आपको यहाँ पर 8 पॉइंट फिगर में शो होता है. सी दिस इज़ द फिगर 8.20 हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग ऑफ इमेजेस. यहाँ पर जो आपको बीच में जो लाइन दिख रही है, ओके, तो ये मिरर की लाइन है. तो इससे क्या होता है कि इमेज के मध्य से पसार होती है जो काल्पनिक रेखा है उससे इमेज के दो आधे भागों को बताई गई रेखा, इससे क्या होता है हम एक ही इमेज के दो आधे आधे पार्ट हम उसे देख सकते हैं. तो वो रेखा के काल्पनिक दर्पण में दिखते दर्पण इमेजों को रिप्लेस करता है. नेक्स्ट इज इमेज फ्लिप वर्टिकल. रिप्लेसेस द टू हेल्प्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय an imaginary horizontal line passing through the center of the image to their mirror images as seen in an imaginary mirror at the said line. See figure 8.21. So dear students, see this is the figure 8.21 vertical flipping of images. तो यहाँ पर क्या होता है कि इमेज के मध्य से गुजरने वाली, तो ये जो मिडल लाइन है
ये वर्टिकल लाइन है। तो इमेज के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक इमेजिनरी लाइन से बनी इमेज के दो आधे भागों को बताई गई रेखा के काल्पनिक मिरर में दिखते मिरर इमेजों को रिप्लेस करता है। इससे भी क्या होता है, ये जो वन फिगर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो इसे रिप्लेस करता है। नेक्स्ट इज इमेज सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट्स द करंट इमेज एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो करंट इमेज है उसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर सेट करना। Figure 8.20 shows a series of images in which the first image is in its original form while subsequent images are obtained by flipping the previous image horizontally। तो जैसा कि हमने देखा ये फिगर 8.20 है, इसमें क्या दिखाया गया है, हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग इमेजेस, एंड फिगर 8.21 में वर्टिकल फ्लिपिंग ऑफ इमेजेस। Next is flipping can also be interpreted as if the image were painted on one side of transparent glass. Such an image is visible from both sides. The horizontal flipping would rotate the image 180 degree around a vertical axis passing through the center of the image, while vertical flipping would rotate the image 180 degree around the horizontal axis passing through the center of the image. Both axes are shown in respective figure for references. Please note that the image shown in this section are readily available in Ubuntu 10.04 and may be copied from the directories user share background and user share icon high color scalable app into the pictures directory of your home directory for practice। तो फ्लिपिंग को इस तरह से भी आप समझा सकते हैं कि जैसे कि इमेज जो ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शक कांच की एक साइड पर पेन की गई थी और ऐसी इमेज दोनों साइड से आपको दिखती है। तो क्षैतिज फ्लिपिंग इमेज को 180 डिग्री पर इमेज के सेंटर में से जो रेखा गुजरती है उसे आप घुमाते हैं, उसे वो दूरी पर घुमाती है। और ये आपको यहाँ पर ये नोट करना है कि जो ये सेक्शन में दर्शाई गई जो फिगर्स है वो उबंटू 10.04 में उपलब्ध होती है और आपकी होम निर्देशिका की पिक्चर्स निर्देशिका में भी ये अभ्यास के लिए कॉपी की जा सकती है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द Rhythmbox म्यूजिक प्लेयर। Rhythmbox is the default music player in Ubuntu. It can be used to play music or audio files from the computer, broadcast, internet, radio, etc. Rhythmbox can be started from the applications menu or by double clicking on any audio file. When started, Rhythmbox does not display any window. It simply adds a small music player like indicator to the indicator applet on the right hand side of the top panel. It almost seems like it did not start. However, on clicking on the side set indicator, we get the options to start and pause the playback, changing to the next or previous track, as well as a show Rhythmbox option to show the actual Rhythmbox window as shown in figure 8.22। तो यहाँ पर फिगर 8.22 है वो किसकी है, Rhythmbox म्यूज़िक प्लेयर की। तो Rhythmbox उबंटू में क्या है, डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर है और इसका यूज़ हम कंप्यूटर पॉडकास्ट जैसे कि डिजिटल मीडिया, विशेषतः इंटरनेट पर ब्रॉडकास्ट की जाती मानव आवाज़ की ऑडियो और इंटरनेट रेडियो ऐसे म्यूज़िक या ऑडियो फाइल प्ले करने के लिए होता है। और Rhythmbox को एप्लीकेशन मेनू में से या फिर किसी भी ऑडियो फाइल पर डबल क्लिक करके उसे शुरू किया जा सकता है और जब उसे शुरू किया जाता है तब Rhythmbox कोई भी विंडो आपको डिस्प्ले नहीं करता है। और ये टॉप पैनल के राइट साइड की ओर आए इंडिकेटर अपडेट के इंडिकेटर जैसे छोटे म्यूज़िक प्लेयर को जोड़ता है और ये लगभग स्टार्ट नहीं हुआ जैसे ही दिखता है। और बताए गए इंडिकेटर पर क्लिक करने से हमें प्लेबैक स्टार्ट और पॉज करने के लिए, नेक्स्ट या फिर प्रीवियस ट्रैक चेंज करने के लिए तथा शो Rhythmbox जैसे ऑप्शन को आपको अवेलेबल होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और शो Rhythmbox ये जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर फिगर में आपको शो होता है।
रिदम बॉक्स म्यूजिक प्लेयर का है यहाँ पर. ओके, देन सिलेक्टिंग क्वाइट फ्रॉम द सेम मेनू टर्मिनेट्स रिदम बॉक्स while closing the window by clicking on the window close button merely hides it in the indicator applet and the playback of song if running continuous. तो उसी मेनू में से क्वाइट सिलेक्ट करने से रिदम बॉक्स डिसअपियर हो जाता है, चला जाता है. और जबकि विंडो क्लोज बटन पर क्लिक करने से ओनली विंडो इंडिकेटर अपडेट में हाइड हो जाता है और गाने का प्लेबैक तो चालू ही रहता है, कंटिन्यू ही रहता है. Rhythm Box works just like so many other music player applications. It scans the entire computer or some directories on its as well as connected removable media for audio files and generates a library of music. For each audio file called track, it also stores common information like the album name, artist, genre, year of publication, etc. wherever available. It also allows the user to sort means arrange and filter the music based on these attributes. At different times the user may play music from different albums by different artists or belonging to a particular genre according to the mood. It allows the user to create different sets of songs called playlist to reflect their choices. Later, the user may instruct Rhythm Box to play the playlist. Rhythm Box will automatically play songs from the playlist one after another, either in sequence or in random order if the user chooses the shuffle option. तो रिदम बॉक्स बहुत सारे जो दूसरे म्यूज़िक प्लेयर होते हैं उनके एप्लीकेशनों की तरह ही अपना वर्क करता है और ये पूरे कंप्यूटर को या उस पर रही कुछ डायरेक्टरीज़ को और उससे जुड़ी हुई रिमूवेबल मीडिया को ऑडियो फाइलों के लिए स्कैन भी करता है और म्यूज़िक को लाइब्रेरी बनाता है. और प्रत्येक ट्रैक ऑडियो फाइल के लिए एल्बम का नाम, उसका आर्टिस्ट, जैनर मीन्स उसका म्यूज़िक का प्रकार, पब्लिकेशन और उसका ईयर जैसे जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर करता है. और ये यूज़र को इन इन्फॉर्मेशन के आधार पर म्यूज़िक सॉर्ट मीन्स अरेंज करने के लिए तथा उसे फ़िल्टर करने के लिए परमिशन भी देता है. और अलग अलग समय पर यूज़र अलग अलग एल्बमों में से विभिन्न जो अलग अलग सिंगर्स के या फिर उसके म्यूज़िक और अपने मूड के अनुसार प्ले भी कर सकते हैं. और ये यूज़र को विभिन्न जो अलग अलग गानों के सेट होते हैं जिन्हें प्लेलिस्ट कहते हैं और अपनी पसंद के अनुसार उसे क्रिएट करने की परमिशन भी देते हैं. और बाद में यूज़र रिदम बॉक्स को प्ले द प्लेलिस्ट के लिए इंस्ट्रक्ट करता है जिससे रिदम बॉक्स अपने आप एक के बाद एक प्लेलिस्ट में से गाने क्रम में प्रस्तुत करता है. और अगर आपको गीत बीच बीच में से पसंद करने हों तो उसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन पसंद करना होगा? शफल. Rhythm Box also has some smart playlists like My Top Rated, Recently Added and Recently Played that are created and automatically updated by Rhythm Box. तो Rhythm Box में My Top Rated ये जो ऑप्शंस दिए हैं उसके जैसे स्मार्ट प्लेलिस्ट भी होती है. The user may also use recommendations from the popular Last.fm website which provides automated or user created music recommendation to user based on the preferences they show or the kind of music they play more. Rhythm Box provides the usual controls like play, previous track, next track, loop means start the first song again after the last song in the playlist. Shuffle means play songs in random order. The play button transfer into pause once the music start playing and again become play when the music is paused. Even though Rhythm Box is the default music player that comes with Ubuntu, we also have the choice to install other free music play software. Rhythm Box does not support the popular MP3 format out of the box because MP3 is a proprietary format covered by patents and creators of hardware and software. MP3 players are often asked to pay royalty to the owners of the patents. Ubuntu as a policy includes only 100% free and open source software on the CD, but it does allow user to install plug-in software means additional part that adds support for MP3 to Rhythm Box. It also permits installation of other media players. For example, VLC is a free multimedia player that supports several audio and video formats and is widely used.
तो जो प्लेलिस्ट होती है जो रिदम बॉक्स द्वारा क्रिएट और खुद ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। तो यूज़र उसे लास्ट FM वेबसाइट से प्राप्त रिकमेंडेशन उसका भी यूज़ कर सकते हैं और यूज़र को अपने आप पसंदगी और रिकमेंडेशन देते हैं। रिदम बॉक्स प्ले, प्रीवियस ट्रैक, नेक्स्ट ट्रैक्स, लूप और शफल जैसे जो सामान्य कंट्रोल है उसे भी प्रोवाइड कराते हैं। प्ले बटन एक बार म्यूज़िक शुरू करने के बाद पॉज में कन्वर्ट हो जाता है और म्यूज़िक को जब पॉज किया जाता है तब वही बटन फिर से प्ले बटन बन जाता है। ओके, और वह रिदम बॉक्स डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर है, उबंटू में वो आता है और हम अन्य फ्री म्यूज़िक सॉफ्टवेयर उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। रिदम बॉक्स जो फेमस MP3 फॉर्मेट आउट ऑफ बॉक्स को सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि MP3 पेटेंट और हार्डवेयर के क्रिएटर्स का मालिकी हक है और MP3 प्लेयर को पेटेंट के मालिकी को रॉयल्टी चुकानी पड़ती है और उबंटू की पॉलिसी CD पर 100% फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने की है, परंतु ये यूज़र को प्लग इन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं देते हैं जो कि रिदम बॉक्स को MP3 के लिए सपोर्ट करते हैं और ये अन्य मीडिया प्लेयर MP3 को सपोर्ट करते सभी को इंस्टॉल करने की इजाज़त देते हैं। और यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है जैसे कि VLC एक फ्री मल्टीमीडिया प्लेयर है जो कई ऑडियो और वीडियो को सपोर्ट करता है और वो बहुत फेमस भी है। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आवर पार्ट 4 इज completed and next video we will see in our next part we will see in our next video. So you have to watch and listen all the parts in very carefully. So our next topic is the Totem movie player. Ubuntu bundles the Totem movie player for playing videos. See figure 8.23. It is a simple video player with an easy to understand interface. You may run a video in it by double clicking a video file. Alternately, you may click application, sound and video, movie player to open it. The movie open option may then be used to open a video file. The left central part of the window is used to display the movie. Below the movie display, a slider marked the time has a small button on it. Dragging this button back and forth allows us to watch the movie from a particular time point and to skip or repeat some parts. Below the time slider are the buttons to move the previous and next video and a play button that transforms into a pause button when a video starts playing. A small icon beside that allows us to watch the movie in full screen mode. In full screen mode, the video is played over the whole screen, leaving only a small bar at the bottom for essential controls and buttons at the top to close the full screen mode and return to normal mode. A speaker button to the right allows us to adjust the volume. The sidebar has options to search the popular video sharing sites YouTube, to display the current playlist or to display properties of the current video. The edit menu has the option repeat and shuffle. It also allows us the capture screenshot from the movie currently playing. Totem movie player comes with support for open video format. Support for other free but not open formats needs to be downloaded in the form of plugs in. So dear students, see, this is the figure 8.23 Totem movie player. So आपको ये एप्लीकेशन है उसे ओपन करने के लिए क्या करना होगा, ये प्रोग्राम है उसे ओपन करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन मेनू, देन साउंड एंड वीडियो, देन मूवी प्लेयर, उस पर क्लिक करना है। ओके, और उसके बाद वीडियो फाइल को ओपन करने के लिए मूवी में जाके ओपन का ऑप्शन आपको चूज़ करना है और उस पर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपके सामने जो वीडियो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो मूवी को डिस्प्ले करने के लिए विंडो के बाएं मध्य भाग का यूज़ किया जाता है, जो आपको पता है ना। सी, यहाँ पर पूरी मूवी को डिस्प्ले किया जाता है। उसके बाद मूवी डिस्प्ले के बीच एक छोटा बटन स्लाइडर मार्कर टाइम होता है। ओके, यहाँ पर ये टाइम को शो किया जाता है। बटन को पीछे और आगे ड्रैग करके समय पॉइंट से मूवी को देख सकते हैं और साथ ही मूवी के कुछ भागों को स्किप या फिर रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये टाइम बटन से क्या कर सकते हो आप, मूवी के जो
कुछ पार्ट्स है उसे रिपीट या फिर स्किप भी कर सकते हो और उसे आगे पीछे घुमाकर आप मूवी को देख सकते हो। टाइम स्लाइडर के नीचे प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोस पर मूव करने के बटन्स होते हैं, ये प्रीवियस, ये मूव करने के, और एक प्ले बटन वीडियो स्टार्ट होने के बाद पॉज में बदल जाता है। तो ये है वो स्टार्ट बटन जो स्टार्ट होने के बाद पॉज बटन में कन्वर्ट हो जाता है, और पॉज पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद जो पॉज हुआ है वीडियो वो बटन फिर से स्टार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके साइड में एक छोटा आइकॉन है जो हमें मूवी फुल स्क्रीन मोड में देखने की आपको परमिशन देता है। और फुल स्क्रीन मोड में पूरे स्क्रीन पर वीडियो चलता है, फुल स्क्रीन में पूरा वीडियो यहाँ पर चलता है। केवल जो बॉटम में एक छोटा बार होता है जिसमें जो आवश्यक कंट्रोल के बटन्स होते हैं, और ऊपर के पार्ट में फुल स्क्रीन मोड को बंद करने और उसको फिर से नॉर्मल मोड पर ले जाने के लिए बटन होते हैं। और दाहिनी ओर आया हुआ स्पीकर बटन वॉल्यूम एडजस्ट करने की आपको परमिशन देता है। तो वॉल्यूम बटन ये रहा यहाँ पर। और साइड बार में जो प्रचलित वीडियो शेयरिंग साइट जैसे कि यूट्यूब को सर्च करने और करंट प्लेलिस्ट को डिस्प्ले करने या फिर करंट वीडियो को गुणधर्मों को डिस्प्ले करने के लिए ऑप्शन भी यहाँ पर होते हैं। एडिट मेनू में विकल्प रिपीट और शफल होते हैं। एडिट मेनू में 2 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर आपको सारे मेनूज भी दिखाई देते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट है मूवी, नेक्स्ट है एडिट। तो एडिट मेनू में कौन से ऑप्शंस होते हैं? रिपीट एंड शफल। और ये हमें चालू मूवी में स्क्रीनशॉट कैप्चर करने की आपको परमिशन देते हैं। टोटेम मूवी प्लेयर ओपन वीडियो प्रारूपों के लिए सपोर्ट के साथ आता है, परंतु अन्य फ्री और खुले नहीं सपोर्ट के लिए जो प्लग आइकॉन्स है, plug INS के रूप में उसे डाउनलोड किया जाना चाहिए।